Good morning to everyone. Today we will discuss the international investment theories. What is international investment theory and which theories are known as the international theory? This is the topic today which we are going to discuss. Origin of the theory, which is international investment theory, explains the flow of investment capital into and out of the country by investors who want to maximize the return on their investments. One of the major factors that influence international investment is the potential return on alternative investment in the home country or other foreign markets. Theories of international investment can essentially be divided into two categories: micro, which is known as the industrial organization theory, and second is the macro, which is also known as the cost of capital theory. So here basically we are having two broad concept of international investment theory: micro and macro. माइक्रो इज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन. माइक्रो जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में what changes can be made, and at the macro level what would be the cost of capital for the investment that deals in the macro segment of the investment theory. Next, if we will talk about the investment, foreign investment, which is in the form of foreign direct investment, which is known as the FDI, and other is known as the foreign portfolio investment, FPI. Foreign direct investment and foreign portfolio investment. Foreign direct investment, FDI, refers to investment in a foreign country where the investor retains control over the investment. It typically takes the form of starting a subsidiary, acquiring a stake in an existing firm, or starting a joint venture in the foreign country. Direct investment and management of the firms concerned normally go together. While as portfolio investment, if the investor has only a sort of property interest in investing the capital in buying equities, bonds, and other securities abroad, it is referred to as portfolio investment. That is, in the case of portfolio investment, the investor uses capital in order to get a return on it, but has not much control over the use of capital. देखिए, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो देखिए, हम इन्वेस्टमेंट थियरी की जो बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट थियरी माइक्रो लेवल पर या मैक्रो लेवल पर? माइक्रो लेवल पर जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट थियरी की, तो ये इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का लेवल होता है, जिसको हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. और मैक्रो लेवल पर जब हम इन्वेस्टमेंट थियरी की बात करते हैं तो इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल थियरी की बात हम करते हैं, जिसको हम कहते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या FPI. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि अगर हम एक एग्जांपल से बात करें कि अगर एक कंपनी है, एक मान लीजिए टाटा कंपनी है, टाटा इज गोइंग टू हैविंग ए जॉइंट वेंचर इन ब्रिटेन, सच एज, बार बार एग्जांपल दिया है, जैसे टेटले का मैंने एग्जांपल दिया है, या कोरस का एग्जांपल दिया है, या जगुआर का एग्जांपल ले लीजिए, निशान का एग्जांपल ले लीजिए. जगुआर टाटा ने एक्वायर किया था ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो ये कहलाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब जब हम किसी कंपनी के में जा करके उसका एक्विजिशन करते हैं, जॉइंट वेंचर करते हैं,
या हम कोई अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहां खुद इस्टेब्लिश करते हैं, यानी हम कोई नई यूनिट खुद वहां लगा रहे हैं। अगर कोई कंपनी फॉरेन में अपनी इन्वेस्टमेंट खुद कर रहा है, तो दैट इज नोन एज द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इट मीन्स द कंपनी which is going for the direct production activities in the any country is known as the direct foreign investment. अब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कई बार ऐसा होता है शेयर मार्केट में जब आईपीओ आता है तो कंपनीज, आप लोगों ने बहुत बार न्यूज में पढ़ा होगा कि टाटा ट्रस्ट ने इस न्यू वेंचर में इन्वेस्टमेंट किया, या अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पैंडेमिक के दौरान रिलायंस में कितनी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया है। बहुत सारी कंपनीज ने इन्वेस्टमेंट किया, रिलायंस का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो काफी बढ़ता गया, बहुत सारे लोगों ने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। एक तरह से इट वाज द फ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल इन इंडिया। तो उसको क्या कह सकते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उन्होंने ज्वाइंट वेंचर नहीं किया है। जितने भी कंपनीज ने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट किया है इस बीच में, जब आप न्यूज में लगातार सुनते रहे हैं, तो उन लोगों ने किसी ने ना तो ज्वाइंट वेंचर किया है, ना तो मर्जर किया है, ना एक्विजिशन किया है। दे that all is in the form of portfolio investment. They have taken the share of the company. तो इसीलिए जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की दो फॉर्म में होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो जब हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, इक्विटी शेयर खरीदते हैं, बॉन्ड खरीदते हैं, या सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं, देन इट इज नोन एज द पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब इंटरनेशनल ट्रेड थियरीज में, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थियरीज में हमें पढ़ना क्या क्या है, ये आप देख लीजिए। आपके सिलेबस में बेसिकली देयर आर 5 थियरीज व्हिच हैव बीन गिवन इन योर सिलेबस। थियरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट्स, मार्केट इम्परफेक्शन थियरी, internationalization theory, location specific advantage theory, and electric theory, which is known as the Dunning's electric theory, ROLI, OCI भी इसको कहते हैं। तो इस थ्योरीज को, इन पांचों थ्योरीज को मिला करके हम कहते हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट थ्योरी। Basically, all 5 theories are the investment theories which have been given in your syllabus. Now, starting with one theory of capital movement. First is the theory of capital movement. Capital is one of the factors of production, such as land, labor, entrepreneur, organization, and कैपिटल इज वन। 5 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं तो उसमें से कैपिटल क्या होता है, नंबर 3rd पर आता है। पहले नंबर पर लैंड आता है, दूसरे पर लेबर आता है, तीसरे पर कैपिटल, इसके बाद एंटरप्रेन्योर और ऑर्गेनाइजेशन आता है। इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट इज एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल बिटवीन कंट्रीज विद द गोल ऑफ ऑब्टेनिंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट। जैसे अगर अभी 2 कंपनीज ने, फेसबुक और रिलायंस ने शेक हैंड किया, यानी फेसबुक ने क्या किया, रिलायंस में जब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट किया। देखिए बार बार मैं बताया जा रहा हूं कि जितने भी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होंगे, दैट विल बी नोन एज द थियरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट, दैट विल कम इन द थियरी ऑफ कैपिटल मूवमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में कभी भी नहीं होगा। तो अभी जो कंपनीज ने, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि फेसबुक ने रिलायंस में जो इन्वेस्टमेंट किया, दैट वाज टू गेट द एक्स्ट्रा बेनिफिट, अदरवाइज फेसबुक इज ऑलवेज रनिंग इट्स कंपनी on as a social media platforms such as Facebook, WhatsApp, Instagram, such all these
social media platforms, they are going, but because of having the increased demand of telecom sector, जियो प्लेटफॉर्म्स का बहुत जबरदस्त इस समय डिमांड है। पैंडेमिक में वर्क फ्रॉम होम की वजह से इस समय टेलीकॉम सेक्टर में डिमांड अपने बूम पर है, तो कंपनीज ने एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑब्टेन करने के लिए, एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन करने के लिए इस इन्वेस्टमेंट को, कैपिटल मूवमेंट को किया है। तो एक तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कैपिटल को मूवमेंट कहाँ कराया गया है, टेलीकॉम सेक्टर में। तो इसी तरीके से अदर कंपनीज में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, जब जैसे अगर हम रिलायंस को कहें, तो रिलायंस इज मूविंग टुवर्ड्स ई कॉमर्स, ई कॉमर्स सेक्टर में मूव कर रहे हैं। तो व्हाई दे आर मूविंग, although they are working in telecom sector, they are working in automobile sector, they are working in retail sector, so then why they are moving towards the e-commerce sector? रिटेल सेक्टर, ध्यान रखिएगा, रिटेल सेक्टर की बात जब मैं कर रहा हूं तो मैं रिलायंस ट्रेंड की बात कर रहा हूं, जो वो अपने शॉपिंग स्टोर्स खोलते हैं। और जब मैं ई कॉमर्स की बात कर रहा हूं तो देन वी आर टॉकिंग अबाउट द online platforms which the Reliance is going to launch for the customers. It can be in the form of physical capital and financial capital. The profit can be interest rate, dividend, share on profit of corporation abroad or rent. Since the companies are investing in the form of, हमने पहले बताया कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बॉन्ड के रूप में होता है, डिविडेंड के रूप में होता है, डिवेंचर के रूप में होता है, शेयर के रूप में होता है, इक्विटी के रूप में होता है। तो all these are the forms which give the interest rate. If you are investing in the form of debenture, then you will get the interest rate. If you are investing in the form of share, equity share or other, then you will get the dividend or share, equity share or the profit of the corporation, or you can also get the rent of the capital which you are giving to the, are investing in the other company. The term of international capital movement refers to borrowing and lending between countries. These capital movements are recorded in the capital account on the balance of payment. अभी आप चल करके इसको कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट आप चल करके पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में, ये आपके यूनिट 5th में है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। जब फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे, तो जब हम कैपिटल मूवमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में या लेंडिंग के रूप में या डिवेंचर के रूप में करते हैं, देन इट इज रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द कंट्री। सिंस इट इज ऑल द इन्वेस्टमेंट, अगर देखिए कैपिटल अकाउंट में हम तब भी करेंगे जब ये that the investment will be in the form of merger, acquisition or investment। तो इसको जब हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, देन इट इज आल्सो रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। ऐसा नहीं है कि इसको कैपिटल अकाउंट में हम नहीं करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट, ऑल द इन्वेस्टमेंट व्हिच इज गोइंग टू अब्रॉड इज रिकॉर्डेड इन द capital account because it is for the long term. One of the most important developments in the world economy in the 1990s has been the spectacular surge in the international capital flow. These flows have emanated from a greater financial liberalization, improvement in information technology, emergence and proliferation of institutional ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस। देखिए 1990 के पहले आपका कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट दोनों कन्वर्टेबल नहीं था।
both were not convertible in any case. तो कैपिटल और करंट अकाउंट की कन्वर्टिबिलिटी 1990 के बाद जब लिबरलाइजेशन का दौर आता है तब शुरू होता है, और उसी के बाद से कैपिटल इन्वेस्टमेंट का फ्लो शुरू होता है. Then how the capital investment will take place, that is in the form of from home country to foreign capital, through the government and private capital. गवर्नमेंट और प्राइवेट कैपिटल की बात जब हम कर रहे हैं तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि चाइना, देखिए दो तरह की कंट्रीज हमने पहले ही आपको बताए हैं. एक होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी में जितने भी, या जिसको हम आजकल कम्युनिज्म कहते हैं, जिसका जैसे रसिया है या चाइना है, अगर यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट होना है दैट विल बी थ्रू द गवर्नमेंट. और जितने भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जैसे अमेरिका है, हांगकांग है, जापान है, साउथ एशियन कंट्रीज में मलेशिया, इंडोनेशिया है, अब आप कह सकते हैं कि हमने इंडिया का, ये सब जो है प्राइवेट कैपिटल के थ्रू इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं. तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, इस कैपिटल इन्वेस्टमेंट को हम दो तरीके से कर सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट कैपिटल. शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल. शॉर्ट टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं. डायरेक्ट एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. डायरेक्ट हमने अभी आपको बताया है कि जब हम कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को डायरेक्टली हम करते हैं तो हम उस समय डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं. जैसे अगर हमने किसी कंट्री में जाकर के कंपनी लगा दी, या हम कोई भी नया इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और जब किसी कंपनी का हम डायरेक्ट शेयर खरीदते हैं या इक्विटी खरीदते हैं या हम डिवेंचर खरीदते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वो पोर्टफोलियो कैपिटल कहलाता है. तो व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस द इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट्स. हमने पहले बताया कि अब भाई अगर आप डिवेंचर के रूप में है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, भाई कितना रिटर्न आपको उस कैपिटल पर जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न, रिटर्न कितना आपको मिल रहा है, ये दिस इज गोइंग टू affect your investment decision. Second, third is the bank rate, speculation, foreign capital policy, economic and political conditions, exchange control policy, tax policy. All these are the, अब टैक्स पॉलिसी कैसे, अगर मान लीजिए कई बार कुछ कंट्रीज की टैक्स पॉलिसीज ऐसी होती हैं जो इन्वेस्टर फ्रेंडली होती हैं, कुछ कंट्रीज की टैक्स पॉलिसी ऐसी होती हैं जो इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं होती हैं. मान लीजिए अगर हम किसी चीज को, किसी भी कंट्री के इन्वेस्टमेंट को अगर डिस्करेज करना चाहेंगे, जैसे आजकल चाइना के खिलाफ चल रहा है, तो हम क्या करेंगे, उनके इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगा देंगे, कस्टम ड्यूटी बढ़ा देंगे, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे. तो ये टैक्स पॉलिसी इसी को कहते हैं. एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी, जैसे भारत का पाकिस्तान के साथ अक्सर है कि पाकिस्तानी कोई भी कंपनी अगर चाहे भी तो भारतीय कंपनी के साथ ना तो ज्वाइंट वेंचर कर सकती है, ना मर्जर कर सकती है, ना तो एक्विजिशन कर सकती है. तो दिस इज द एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसी. इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशंस, हमने पहले ही बताया है कि पॉलिटिकल कंडीशंस, जैसे पाकिस्तान के साथ तो हमारे पॉलिटिकल कंडीशंस कभी भी ठीक नहीं रहे हैं, लेकिन आजकल चाइना के साथ जो कंडीशन चल रही है तो उसकी वजह से आपने देखा कि 256 चाइनीज ऐप पर बैन लगा दिया. तो दैट इज गोइंग टू हैव द ह्यूज इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दैट कंपनी एंड डिसीजन ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन इंडिया. वो कंपनीज वर्किंग तो इंडिया में
उनका कंज्यूमर बेस तो इंडिया में बहुत ज्यादा था, तो दैट इज आल्सो गोइंग टू हैव द इन्वेस्टमेंट affect the investment decision of that companies broadly. So all these are the factors which are going to affect the decision of investment. Now coming on the market imperfection theory. अब दूसरा, अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो था कैपिटल मूवमेंट थ्योरी, अब हम लोग बात करने चल रहे हैं मार्केट इम्परफेक्शंस थ्योरी की। An imperfect market refers to any economic market that does not meet the rigorous standards of the hypothetical perfectly or purely competitive market. देखिए, जब मार्केट आपको पढ़ाया गया था, आप थोड़ा सा याद करिए फर्स्ट सेमेस्टर को, तो आपको कई तरह के मार्केट पढ़ाए गए थे, जिसमें था मोनोपोली। प्लीज गिव द मैसेज कि लोग बार बार ज्वाइन कर रहे हैं एंड इट इज गिविंग ह्यूज डिस्टरबेंस व्हाइल गिविंग द लेक्चर। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, लेक्चर बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। प्लीज गिव द मैसेज, डोंट डू दिस, स्टॉप डूइंग दिस। बीच में बार बार वो लोग निकल रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। अगर एक बार निकल हो गए तो निकल जाओ प्लीज, आप बार बार ज्वाइन ना करो इसमें। तो अब जो हम लोगों ने मार्केट की बात करी थी, तो मार्केट में मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट, imperfect competition, perfect competition. So these were the market segments or market classifications of the, these were the market classifications. तो अब यहाँ पर हम बात करने चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट थ्योरी की, वो भी इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट कंपटीशन में आप जानते हैं कि जो डिसीजंस होते हैं वो कंपनीज सेल्स के डिसीजंस खुद नहीं ले सकते हैं। कंपनीज आर सेलिंग द होमोजेनस सेम प्रोडक्ट, जबकि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में होमोजेनस प्रोडक्ट को कंपनी सेल करती है। देयर आर स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, टूथपेस्ट है, सोप है, हर कंपनी का अपना एक अलग स्पेसिफिकेशन होता है। एंट्री एंड एग्जिट होता है, ब्रांड नेम होता है कंपनी का, मार्केट शेयर होता है। तो these are all the affecting the market condition, these are making them imperfect market condition. So pure or perfect competition is an abstract theoretically market structure in which a series of criteria are met. What are the criteria? जो हमने अभी आपको बताया कि कंपनी कैन exit and enter freely in the market. There are product differentiations, हमने अपनी एग्जांपल देके आपको बताया। स्मॉल नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, अगर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते तो ये कॉम्पिटिटिव मार्केट हो जाता, और प्रोडक्ट अगर होमोजेनस होता तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट हो जाता। लेकिन अगर प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है तो इसको इम्परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर में दैट इंक्लूड्स मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। एक चीज मैंने दिया हुआ है, मोनोपोसोनी एंड ओलिगोपोसोनी। आप देखिए नीचे ये दो चीजें अगर आप देख रहे पा रहे हो, मोनोपोसोनीज एंड ओलिगोपोसोनीज। मोनोपोसोनी कहते हैं कि when there is one buyer and many sellers, there is only one buyer, और ओलिगोपोसोनी is when there is only one buyer and few sellers. मोनोपोसोनी में one buyer and one buyer and मोनोपोसोनी में one buyer है, many sellers है, सॉरी one seller है, one buyer है। ओलिगोपोसोनी में few sellers हैं और few buyers हैं, तो उसको ओलिगोपोसोनी कहते हैं। Now market imperfection theory is a trade theory that arises from the
international market where perfect competition does not exist. At least one of the assumptions of perfect competition is violated. वो हम बता दे रहे हैं आपको कि कौन सा परफेक्ट कंपटीशन का जो assumption है वो वायलेट होता है. That is the products are perfectly homogeneous. Homogeneous product है, तो homogeneous product यहाँ ना होकर के क्या होता है, product differentiation होता है. And out of this comes what we call an imperfect market. We know that a perfect market is not really attainable. Perfect market हम बार बार आपको बता चुके हैं, it does not actually it does not exist in the world. जो मार्केट का फॉर्म, एक्चुअल फॉर्म जो रियल मार्केट में होता है वो या तो ओलिगोपोली है या तो इम्परफेक्ट है. मोनोपोली भी अब नहीं पाया जाता है. कुछ सेक्टर्स में मोनोपोली था, लेकिन अभी स्पेसिफिक सेक्टर की बात अगर हम करें तो रेलवे वाज हैविंग द मोनोपोली कंडीशन इन इंडिया, बट अब वो भी सरकार जब से प्राइवेट सेक्टर में कुछ ट्रेनों को दे रही है तो एग्जाम्पल मोनोपोली का नहीं रह जाएगा. क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, तो होमोजेनियस प्रोडक्ट्स अब पाए नहीं जाते हैं, इसलिए perfect competitive market actual में exist नहीं करता है. Even in the United States we have imperfect markets. Remember the assumptions for a perfect market are buyers and sellers are both price takers. Companies sell virtually identical products. Buyers and sellers have perfect information. Multiple companies owns a small market share. There is no barriers of entry or exit. These are the assumptions which we have to deal with them in market imperfection theory. Now, तो देखिए आज हम लोगों ने जो बात किया है वो दो थ्योरीज की बात किया कि इन्वेस्टमेंट थ्योरी में कैपिटल मूवमेंट थ्योरी एंड मार्केट इम्परफेक्शन थ्योरी, इंटरनेशनलाइजेशन थ्योरी और लोकेशन स्पेसिफिक थ्योरी, और तीसरा है इलेक्ट्रिक थ्योरी जिसको हमने डनिंग्स इलेक्ट्रिक थ्योरी कहा, OLI मॉडल कहा है. तो ये तीन थ्योरीज की को हम कब करेंगे, नेक्स्ट क्लास में. अभी हम लोगों ने दो थ्योरीज की बात करी है. इसके बाद सिंस वी हैव टू गो फॉर द सरप्राइज क्विज, so I am stopping the class today with these two theories, theory of capital movements and market imperfection theory. So tomorrow we will talk about the internationalization theory, location specific advantage theory and electric theory for free trade. Thank you very much for today, and be ready to take the